Welcome to We Learn. This is session 17 of software engineering. Today we are going to discuss about various software engineering fundamentals. After that we are going to discuss about the software configuration management, then software maintenance process, and at last we are going to discuss what is software quality assurance. So first of all, let us discuss about the configuration management. Here we are going to discuss about what are the activities which we perform in configuration management. So first of all, new versions of a software system are created as they change. मीन्स कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम इट डिमांड्स अ चेंज. नीड के अकॉर्डिंग हमें किसी भी सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ता है. सो फॉर डिफरेंट मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ सकती है, हमें कोई सॉफ्टवेयर हो डिफरेंट मशीन्स पर रन करना है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर वर्क करना है, उसको रन कराना है. दैट्स वाई वी नीड अ चेंज. अदर फैक्टर्स कैन बी ऑफरिंग डिफरेंट फंक्शनैलिटी. If we want to change the functionality of a software, then also we use the concept of configuration management. Then tailored for particular user requirements, means it is basically used to meet certain specific requirements. If you want to perform a specific task, अगर आपको कोई एक particular task perform करना है, then also you can use it. Now configuration management is concerned with managing evolving software systems. So evolving software systems means it is helpful in creating software systems. So we can say a new version of a software system which demands some change, some type of change in its functionality, in its look. So change किसी भी टाइप का हो सकता है, उसकी फंक्शनैलिटी में हो सकता है कोई चेंज हो, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है वो, उसकी फंक्शनैलिटी में कुछ चेंज हो सकता है, ओवरऑल लुक में कुछ चेंज हो सकता है. सो दिस चेंज कैन बी ऑफ एनी टाइप. Basically CM, that is configuration management, aims to control the costs and effort involved in making changes to a system. With the help of CM we can easily control the costs. मतलब जो हमारा CM है, जो configuration management process है, उसकी हेल्प से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. जो कि एक कॉस्ट अप्लाई हो रही है किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में, उसमें कुछ चेंजेस करने में, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन प्रॉपरली यूज इट. Basically, when we talk about the configuration management, it involves the development and application of procedures and standards to manage an evolving software product. So यहाँ पर क्या है, हमारे different procedures होते हैं, standards होते हैं, जिनकी हेल्प से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं. तो इन सब को मैनेज करने का काम किसका होता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस का. सो CM may be seen as a part of मोर जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस. इसको जनरली हम कंपेयर कर सकते हैं, जनरली हम ट्रीट कर सकते हैं लाइक जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस. लाइक अ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस हमारे क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेस होता था, उसी के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं उसी की तरह. बेसिकली इट इज़ used when released to CM, that is software systems are sometimes called baselines as they are a starting point for further development. जो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं उनको हम बेसलाइन बोलते हैं. बेसलाइन क्यों बोलते हैं, देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न फॉर दैट. इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हम कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग लेवल से उसको क्रिएट करते हैं, रूट लेवल से क्रिएट करते हैं. और अगर हमें कोई चेंजेस करने होते हैं, कोई न्यू वर्जन हमें क्रिएट करना होता है, डिज़ाइन में चेंजेस करने होते हैं, तो हम ईजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ that base product or the original software. Then there are different system families. System families means different operating systems can be there. So first of all there is a initial system. कोई एक initial system है, then it can be further divided into different categories like HP version, PC version or Sun version. According to the user need, these can also be further divided into certain categories. Similarly, there is a PC version is further classified into two categories called Windows XP version and Linux version. Similarly, Windows XP is further divided into two parts, desktop version and server version. So these are the different families, different versions of the computer systems. Now the concept of configuration management planning. प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, प्लानिंग इज बेसिकली अ थिंकिंग प्रोसेस. सो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में जब हम कोई थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं, व्हेन a thinking process is involved in a configuration management, it comes under configuration management planning. So
all products of the software process may have to be managed. यहाँ पर जितने भी प्रोसेसेस हैं सॉफ्टवेयर में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो यूज़ हो रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, वो हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं. एंड दीज कैन बी स्पेसिफिकेशंस, हम मैनेज कर सकते हैं स्पेसिफिकेशंस को, डिज़ाइंस को, जो हमारा डिज़ाइन है उसको मैनेज कर सकते हैं, ओवरऑल लुक कैसा होना चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं. देन प्रोग्राम्स, दैट मीन्स वी कैन डिसाइड द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, देयर lines of code. So all these things can be decided in the planning part. Then test data means the input values on which we are going to test the output. User manuals means you can say a user guidelines, a user helpline, that means how a user can easily access the particular software. Now the next point is thousands of separate documents may be generated for a large complex software system. किसी भी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए हमें सेपरेट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं. एंड दीज डॉक्यूमेंट्स कैन मे वेरी फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर एंड कैन बी ऑफ एनी अमाउंट, लाइक इट कैन बी इन थाउजेंड्स एज वेल. नाउ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस. बेसिकली जब हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस की बात करते हैं, मेंटेनेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम सॉफ्टवेयर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ चेंजेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन फेज. इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है, उसमें यूज़र उसे यूज़ करता है सॉफ्टवेयर को. यूज़र को यूज़ करने के बाद अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आफ्टर सम टाइम, देन वी आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग एंड दिस इज कॉल्ड अ मेंटेनेंस प्रोसेस. नाउ हियर द फर्स्ट पॉइंट इज बी प्रिपेयर टू कीप रिक्वायर्ड मैट्रिसेस इंक्लूड. यहाँ पर रिक्वायर्ड मैट्रिसेस मीन्स जो हमारे मैट्रिसेस, दैट मीन्स जो डेटा है उस द डेटा विल कंटेन दीज थिंग्स लाइक लाइन्स ऑफ कोड added, lines of code changed, and time taken. Time taken basically किन किन aspects में आप time को measure कर रहे हो, like time taken for the preparation of design, time taken for the preparation of design, time taken for the you can say a preparation process before creating a software, time taken for the code, time taken for the testing phase. So it includes different aspects of the process. Now the second thing here is ensure that the request has been approved. The changes are made in a software only when these are approved by the higher authorities. जो higher authorities हैं, जो seniors हैं, senior programmers हैं, when they approve the changes, then only the changes can be made in a software. Now the next thing is understand the problem thoroughly, reproduce the problem, otherwise get clarification. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया जाता है, देन रिप्रोड्यूस द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को फिर से चेक किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसे रिमूव करने की कोशिश की जाती है, अदरवाइज गेट क्लैरिफिकेशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासीफाई द एमआर एज रिपेयर और इन्हांसमेंट. जो हमने चेंजेस किए हैं उनको हमें एक कैटेगरी के अंदर डिफाइन करना पड़ता है, वेदर इट इज़ अ रिपेयरमेंट और इन्हांसमेंट. इन्हांसमेंट मीन्स we have enhanced the features, we have added some extra features, and repair means जो हमारे कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम था उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसमें जो एरर्स थी, उसमें जो मिस्टेक्स थी, उनको रिमूव किया गया है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. सो दिस कैटेगरी इज कॉल्ड रिपेयर एंड द अदर इज एनहांसमेंट. नाउ द फिफ्थ पॉइंट हियर इज डिसाइड वेदर द इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स ए रीडिज़ाइन एट ए हायर लेवल. मतलब अगर किसी सॉफ्टवेयर को हमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसके डिज़ाइनिंग में हायर लेवल पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है. इफ़ सो कंसीडर बैचिंग विद अदर एमआरस. अगर ज़रूरत है तो उसकी हम बैचिंग करते हैं, उसमें मॉड्यूलिंग करते हैं, एंड देन द डेवलपमेंट प्रोसेस बिगिंस. देन द सिक्स्थ वन इज डिज़ाइन द रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन. जो आप चेंजेस करना चाहते हो, द चेंजेस विच यू वांट टू मेक इन अ सॉफ्टवेयर, you have to design those changes. Now comes the CM plan. Basically CM plans defines the type of documents to be managed and a document naming scheme. जो हमें डॉक्यूमेंट्स हमें डिफाइन करना है, जो डॉक्यूमेंट्स हमें डिफाइन करने हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे, उनकी नेमिंग स्कीम क्या होगी, ये यहाँ पर हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ CM प्लान. It also defines who takes responsibility for the CM procedures and creation of baselines. Means it also shows that how much time a particular production process needs,
and what are the responsibilities to be taken to be performed by a particular system. It also defines the policies for change control and version management. अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, उसके वर्जन में न्यू वर्जन लॉन्च करना चाहते हो, सो ऑल दीज कैटेगरीज कम्स अंडर CM प्लान. Defines the CM records which must be maintained. So it also defines the maintenance process, the data which is to be maintained in a software. It is shown by the CM plan. It also describes the tools which should be used to assist the CM process and any limitations on their use. So basically CM plan क्या करता है, ये describe करता है different tools which we are using in a CM process and any limitations on their use. मतलब अगर उसमें कुछ limitations हैं कि हमें कौन सा tool किस टाइम पर use करना है, at what time we have to use and for how long, then all such aspects are shown by the CM plan. Now the next thing is it defines the process of tool use. Basically जो हमने कौन कौन से tools use किए हैं, कैसे use किए हैं, it also shows that aspect of a development process. Then it defines the CM database used to record configuration information. जो हमारा डेटाबेस है जिसमें डेटा हमने स्टोर किया है, उसको डिफाइन करने के लिए भी हम CM प्लान का यूज करते हैं. It may include information such as the CM of external software, process auditing, etc. तो यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो CM का यूज करता है टू शो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर और प्रोसेस ऑडिटिंग. इन एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए हम CM प्लान का यूज करते हैं. देन कॉन्फ़िगरेशन आइटम आइडेंटिफिकेशन. बेसिकली इट कंसर्न विद लार्ज प्रोजेक्ट्स टिपिकली प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड. तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, उससे रिलेटेड जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, यू कैन से अ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. सो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को क्रिएट करने का काम, यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम होता है कॉन्फ़िगरेशन आइटम आइडेंटिफिकेशन का. सो सम ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी मेंटेन्ड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द सॉफ्टवेयर. जब हम किसी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर कुछ एलिमेंट्स, कुछ डेटा ऐसा होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि हमें रखना पड़ता है, सेव करके रखना पड़ता है फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द सॉफ्टवेयर. जब तक सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क करेगा तब तक उन्हें हमें रखना पड़ता है. ऑल दीज आर मैनेज्ड बाय द कॉन्फ़िगरेशन आइटम आइडेंटिफिकेशन. The next thing here is document naming scheme should be defined so that related documents have related names. जो हमारी document naming scheme है उसको हमें define करना पड़ता है because जो हमारे related documents हैं और जो related names हैं उनको हम easily identify कर सकें, define कर सकें. After that, a hierarchical scheme with multi-level names is probably the most flexible approach. इस concept के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए और नेमिंग के लिए हम बेसिकली जो बेस्ट टेक्निक यूज करते हैं वो है हायरार्किकल स्कीम. सो इट शोज द कॉन्फ़िगरेशन हायरार्की. हायरार्की का मतलब होता है एक बेसिकली अप्रोच, लेवल्स. इट शोज द डिफरेंट लेवल्स इन अ पर्टिकुलर सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर सिस्टम. तो क्या है यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं PCL टूल्स हैं. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंपाइल दैट. कंपाइल के बाद बाइंडिंग हुई, एडिटिंग किया आपने, मेक जैन आपने यहाँ पर कोड जनरेट किया. तो उसके बाद एडिटिंग में आपने क्या किया, फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स एंड हेल्प. दीज आर द थिंग्स विच यू कैन चेंज इन द फॉर्म्स. विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स यू कैन डिस्प्ले फॉर्म स्पेक्स एंड इंटरफेस, देन फॉर्म इनपुट आउटपुट. सिमिलरली इंटरफेस में आप यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, कोड एंड टेस्ट. सो दिस शोज द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ए, you can say, a system. Hierarchical means top down approach. यहाँ पर जो hierarchical ये शो कर रहा है ये top down approach है. That means जो हमारा मेन मॉड्यूल है उसको हमने सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया. Now the case tools for configuration management. Basically CM process are standardized and involve applying predefined procedures. Predefined procedures means जो पहले से ही हमने कुछ procedures define किए हुए हैं, techniques, rules, regulations, ये सब डिफाइन किए हुए हैं. उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस के क्रिएशन में, डेवलपमेंट प्रोसेस में. लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा मस्ट बी मैनेज्ड. दैट मीन्स इट हेल्प्स इन मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. हेयर केस टूल सपोर्ट फॉर CM इज देयरफॉर एसेंशियल. इसीलिए केस टूल की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है टू सपोर्ट
CM को सपोर्ट करने के लिए केस टूल की ज़रूरत पड़ती है. वी नीड केस टूल टू सपोर्ट दिस CM change, that is change management. After that, mature case tools to support configuration management are available, ranging from standard tools to integrated CM workbenches. जब कोई हम टास्क परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं, मैनेजिंग का टास्क परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं. डिफरेंट टूल्स वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू देयर रेंज, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस. बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस एक ऐसा फील्ड है विच बेसिकली ये हम इसलिए यूज करते हैं. इट शोज दैट द क्वालिटी, इट मेंटेन्स इट, यू कैन से ये इंश्योर करता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी होगी वो बेटर होगी. इट इज द सॉफ्टवेयर विच वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, विच वी आर गोइंग टू डेवलप विल बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं उनको कोई मीट करता है हमारा प्रोडक्ट या नहीं करता, कोई सॉफ्टवेयर हमारा उनको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. ऑल दीज एस्पेक्ट्स कम्स अंडर सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस. सो अंडर दिस quality concept we are going to discuss about the quality, then quality control, after that quality assurance, and at last cost of quality. So first of all, what is quality? Basically quality is considered in two ways. First from the point of view of customer and the other from the point of view of producer. So from the customer's view, a quality product is one which is fit for use. User के according क्या है बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कौन सा है जो कि बेस्ट सूटेबल है यूज के लिए, appropriate है, that software or that product is the best quality software. Producers view, from the producers view के according best quality software कौन सा है? Quality product is one which is produced as per predefined specifications. मतलब जो हमने requirements पहले से define की थी, अगर उन सारी requirements को हमारा कोई software satisfy करता है then only it is of best quality. Now comes the quality assurance, that is QA. So QA consists of the editing and reporting functions of management. QA का मेन काम क्या है? एडिटिंग एंड रिपोर्टिंग का. जो QA है वो ये चेक करता है कि जो प्रॉपरली हमारे जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो रही है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की या नहीं. द गोल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस इज टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद द डेटा नेसेसरी टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी. सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्वालिटी अश्योरेंस का? कि ये डेटा कलेक्ट करता है, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देन इट प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट related to the quality of a product, so thereby gaining insight and confidence that product quality is meeting its goals. Now quality assurance versus quality control, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? So these are two way of checking quality. ये दोनों ही क्वालिटी को चेक करने के मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं. One is to check the product after it has been manufactured to see if it is as per defined specifications. इनमें से एक टेक्निक है, हम जनरली जो इसमें एक टेक्निक ये क्वालिटी एश्योरेंस यूज़ करते हैं. इट बेसिकली चेक्स वेदर जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमने मैन्युफैक्चर किया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस या नहीं. सो यहाँ पर चेकिंग करते हैं हम आफ्टर दी मैन्युफैक्चर, व्हेन आफ्टर दी सॉफ्टवेयर हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड. आफ्टर दैट फाइन ट्यून द प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व in the development of the product to such an extent that the end product to confirm the specifications. यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको ये चेक किया जाता है कि वो मीट करता है हमारा प्रोडक्ट या नहीं. एंड प्रोडक्ट चेकिंग इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल. जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, जो हमारा आउटपुट है उसको चेक करते हैं. अगर हम किसी प्रोडक्ट को चेक करते हैं, उसका आउटपुट चेक करते हैं, देन दिस कम्स अंडर क्वालिटी कंट्रोल. बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल इट इज़ डन आफ्टर द इवेंट एंड इज करेक्टिव इन नेचर. क्वालिटी कंट्रोल हम करते हैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद और ये करेक्टिव नेचर होता है. दैट मीन्स हम उसको चेंज कर सकते हैं आगे. फॉर द फ्यूचर वी कैन टेक डिफरेंट एक्शंस टू कंट्रोल द क्वालिटी. देन प्रोसेस डेफिनेशन एंड रिफाइनमेंट इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस. प्रोसेस डेफिनेशन एंड रिफाइनमेंट मीन्स कोई प्रोडक्ट है उसमें आप प्रोसेस को उसकी कुछ चेंज करना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो. रिफाइनमेंट मीन्स उसमें और ज़्यादा उसे बेस्ट बनाना चाहते हो, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो. देन दीज थिंग्स कम्स अंडर क्वालिटी एश्योरेंस. सो इट इज़ ए प्रिवेंटिव इन नेचर एंड इज द मॉडर्न फिलोसफी इन क्वालिटी मैनेजमेंट. नाउ कम्स द QA एंड QC. क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस को एग्जिस्ट विद QA रिप्लेसिंग QC ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम.
जनरली ये जो टर्म है ये एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड हैं, एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स दीज आर रिप्लेस्ड विद ईच अदर. Now here is a normal diagrammatical representation of software quality. Here you can see for the proper software quality we can use formal technical review, measurement, testing, SCM and SQA, that is software quality assurance, then standards and procedures, and at last software engineering methods. So these are the techniques which can use for the proper quality of a software. Now software quality assurance, in this you can use basically सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ एंड एसक्यूए प्लानिंग टीम एक्टिविटीज़. यहाँ पर दो एक्टिविटीज़ को हम कंसीडर करते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़, दैट मीन्स द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड बाय द इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स while creating a software. And similarly it also consists of SQA planning team activities. That means software quality assurance की जो टीम है, जो उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, द टास्क परफॉर्म्ड बाय देम बाय दिस टीम comes under SQA plan. Now the statistical quality assurance. Basically statistical quality assurance reflects a growing trend throughout industry to become more quantitative about quality. क्वालिटी के जो एक ये कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच है, उसको और फेमस बनाने के लिए, टू एक्सटेंड दिस वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी. दैट मीन्स हियर द क्वालिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. फैक्ट्स के फॉर्म में हम क्वालिटी को मेजर करते हैं. हियर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग स्टेप्स. That is, information about software defects is collected and categorized. जो किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एक कलेक्ट होनी चाहिए और कैटेगराइज होनी चाहिए. दैट मीन्स उसको हम पार्ट्स में शो कर सकते हैं. देन एन अटेम्प्ट इज मेड टू ट्रेस ईच डिफेक्ट टू इट्स अंडरलाइन कॉज. किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर दिस टॉपिक. सो यूजिंग पेरेटो प्रिंसिपल. पेरेटो प्रिंसिपल मीन्स यहाँ पे क्या है, 80% ऑफ द डिफेक्ट्स कैन बी ट्रेस्ड टू 20% ऑफ ऑल पॉसिबल कॉजेज. जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो पॉसिबल कॉजेज, उसमें से कितने आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, 20% जनरली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं. आइसोलेट दी 20%, दैट इज द वाइटल फ्यू. जो कुछ बचे हैं वो कितने परसेंट होते हैं, 20%. सो वंस द वाइटल फ्यू कॉजेज have been identified, move to correct the problems that have caused the defects. जब हम vital causes को identify कर लेते हैं, then we make some changes to correct those problems and then remove the problems. Now comes the SQA plan. So basically the SQA plan provides a roadmap for instituting software quality assurance. It acts as a road, it acts as a map for the software quality process. So it was developed by the SQA group. SQA group ने इसको क्रिएट किया था. दैट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. जो हमारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप जो होते हैं, जो टीम होती है, वो इसको प्लान को क्रिएट करती है. एंड द प्रोजेक्ट टीम, जो हमारी प्रोजेक्ट टीम है, दैट मीन्स द टीम कंसिस्टिंग ऑफ द डेवलपर्स, द टीम लीडर्स एंड द सीनियर प्रोग्रामर्स. द प्लान सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर SQA एक्टिविटीज दैट आर इंस्टीट्यूटेड फॉर ईच सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. जो हमारा प्लान है वो एक तरीके से टेम्पलेट का वर्क करता है हमारे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज के लिए. नाउ द ISO अप्रोच टू क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम. ISO मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जो कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को वेरीफाई करता है. सो ISO 9000 डिस्क्राइब्स द एलिमेंट्स ऑफ ए क्वालिटी एश्योरेंस इन जनरल टर्म्स. सो दीज एलिमेंट्स इंक्लूड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ISO ने क्या डिफाइन किया था, कुछ एलिमेंट्स थे क्वालिटी एश्योरेंस के लिए. एंड दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डिफाइन होना चाहिए. देन प्रोसीजर्स, दैट मीन्स द प्रोसेस, टेक्निक्स, द मेथड्स यू हैव यूज, द प्रोसेसेस एंड द रिसोर्सेज नीडेड टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी प्लानिंग. और जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो हमें रिसोर्सेज चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं. quality control, quality assurance and quality improvement. So all these aspects comes under the ISO 9000 standard. However, ISO 9000 does not describe how an organization should implement these quality system elements. ISO ने रूल्स ये डिफाइन किए कि कौन कौन से होने चाहिए किसी भी एलिमेंट्स के लिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बट इट डज नॉट शो हाउ दीज रूल्स और हाउ दीज एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द क्वालिटी criteria. Now at the end of this session, here is the exercise for you. Here the first question is,
Quality and reliability are related concepts but are fundamentally different in a number of ways. Discuss them. Now the next question is, explain in more detail software quality assurance. So this is the end of today's session. Thank you.